Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna Binte Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे English for the grade 8 का unit number 2 and the title of unit is Sadia Gets Reward. अच्छा, the bear stopped at the gate in front of the house. The gate was wide open and it walked into the front garden. At this moment, the front door opened and the 3-year-old boy also stepped into the garden. He saw the big bear and walked towards it. "Big doggy," he said. "I want to play with the big doggy." "Come back, Master Tahir," shouted Sadia as she ran out of the room to the balcony. "Come back at once. It's a bear, not a dog." But young Tahir did not listen. He continued to walk towards the bear. Sadia knew she had to do something more than just shouting at the boy at once too. Quickly she returned to the room and gathered as many ornaments as her arm could carry. Then she hurried out to the balcony. She threw down the precious ornament one after another at the bear. "Get away from the boy, you brute," she shouted. Some of the things she threw hit the bear and some crashed to the ground in the front of the bear. Surprised by the sudden attack, the bear moved back before it could do any harm to the boy. The servant looking after the young master was watching the whole scene with the horror. When the bear backed away, she quickly ran out of the house and carried the boy to safe place. The bear owner had also come by this time. He robbed the bear and led it away. Sadia looked at the broken pieces of the ornaments on the ground. Her heart began to sink. That evening, the housekeeper said to Sadia, "You saved Master Tahir. Mr. Saad is very pleased. He wants to see you now." Sadia followed the housekeeper to the study. They found Mr. Saad there. Finding out how many ornaments he had broken, when he saw Sadia, he said, Sadia, you have broken the most precious vases I have collected, but you did the right thing. My son is more precious to me than the ornaments. So I wish to thank you for saving my son's life. I would like you to have this gold coin as a reward for what you have done. Sadia thought she was in a dream. She was always punished for breaking things. He never thought she would really be rewarded for doing it. जी, स्क्रब रगड़ के साफ करना, वाइपिंग कपड़े से साफ करना, क्लमजी मतलब आपका ना अहल होना किसी चीज़ के लिए, स्कॉल्डेड चीखना, ब्रूम झाड़ू जिसको कहते हैं, फायरसर कह लें बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, सॉब यानी कि आवाज़ के साथ रोना, स्टर्नली डिफ़िकल्ट होना, ऑर्नामेंट जो चीज़ें होती हैं, थिंग्स होती हैं, टॉपल्ड का मतलब होता है कि ऊपर से किसी चीज़ का बहुत भारी होना, थम बहुत ज़ोर से धड़कना, टेम सुधरा हुआ, ब्रूट यानी कि जालिम होना। अब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं। सादिया सिर्फ 14 साल की थी। वो दुबली पतली और पीली थी और 10 साल के बच्चे जैसी लगती थी। बाकी नौकर उसके साथ नारवा सलूक करते थे। वो उससे सारा दिन धोने और सफाई का काम करवाते थे। एक सुबह नौकरानी ने उसे अगली सीढ़ियों पर झाड़ू देने को कहा। जैसे ही वो फारिग हुई, बावर्ची ने उसे कप और तशरी धोने का हुक्म दे दिया। सादिया भूखी और थकी हुई थी। उसने नाश्ते में सिर्फ रोटी का एक टुकड़ा और एक चाय का कप लिया था। चुनाचे जब वो एक कप पहुंच रही थी, उससे वो कप गिरा और गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अन्नाड़ी, बेवकूफ़, बावर्ची ने डांटा। ये महंगा चाइना का है, आपको इसकी कीमत अदा करनी होगी। एक और कप तोड़ दो और आपके पास इस हफ्ते के आखिर में घर ले जाने के लिए पैसे नहीं होंगे। "मैं माफ़ी चाहती हूँ मैडम, मैं ज़्यादा मोहतात रहूँगी मैडम," सादिया ने कहा। वो तकरीबन रो पड़ी थी। वो टूटे हुए टुकड़ों को साफ कर रही थी कि अचानक किचन का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा झाड़ू के हैंडल से टकराया और दरवाजे का शीशा ज़ोर से गिरा। "तुम इतनी अनाड़ी कैसे हो सकती हो?" औरत चीखी जिसने दरवाज़ा खोला। "क्या आपकी आंखें नहीं थी? आप देख नहीं सकती थी कि मैं अंदर आ रही हूँ?" वो असिस्टेंट हाउसकीपर थी। वो बावर्ची से ज़्यादा सख्त थी। "मैं माफ़ी चाहती हूँ मैडम," सादिया ने ऐसा कहा। वो ये भी जानती थी कि टूट फूट की वजह से उसकी एक हफ्ते की तनख्वाह से ज़्यादा लागत आई है। अगला काम सादिया को
जो इस सुबह करना था वो मुताले के कमरे को साफ करना था। इस बात को यकीनी बनाएं कि आप हर चीज़ को एहतियात से साफ करेंगी। घरेलू मुलाजिम ने सख्ती से कहा, अगर आप दोबारा कुछ तोड़ देती हैं तो आपके पास बाकी दिन खाने को कुछ नहीं होगा। सादिया ने एहतियात से कमरे में मौजूद एक एक चीज़ को साफ किया और धूल मिटाई। उसने गिना 25 टुकड़े थे, सब खूबसूरती से बनाए गए थे और बहुत महंगे थे। जब वो इनको साफ कर चुकी तो उसने सुकून की सांस ली। अब मैं थोड़ा आराम कर सकती हूँ, उसने कहा। फिर नज़र दौड़ाते हुए उसने दीवार पर एक खूबसूरत तस्वीर नजर आई। वो करीब से देखने उसके करीब गई। फ्रेम पर कुछ धूल थी, इसलिए उसने उसे उतार कर साफ कर दिया। एक बड़ी मकड़ी फ्रेम के पीछे से रेंगती हुई बाहर आई और उसके दाएं बाजू पर गिर गई। इसको भगाने की कोशिश में उसका बाजू एक गुलदान से टकरा गया और वो मेज पर से लुढ़क गया। जैसे ही वो फर्श पर गिरने वाला था, सादिया ने उसे पकड़ लिया। इस हादसे से इसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो खिड़की के पास गई और बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसकी टांगें कमज़ोर और कांप रही थी। अपने आप को पुरसुकून करने के लिए उसने खिड़की से बाहर देखा और राहगीरों को देखना शुरू किया। जिन लोगों को उसने देखा उनमें एक आदमी एक बड़े रीछ की रहनुमाई कर रहा था। कितना खतरनाक नजर आने वाला भी रीछ, सादिया ने कहा। वो इस आदमी और इस रीछ को देखती रही, यहाँ तक कि वो नज़रों से ओझल हो गए। उन दिनों कुछ लोग रीछों को सड़कों पर नाचने और करतब दिखाने की तरबियत देकर रोज़ी कमाते थे। शो देखने वाले लोग हमेशा रीछ के मालिक को शो के बाद कुछ पैसे देते थे। जो रीछ सादिया ने देखा था ये उन रीछों में से एक था। जब उनके मालकान आसपास होते थे तो वो काबू में रहते थे, लेकिन अगर उनके मालकान दूर होते तो वो लोगों पर हमला कर देते। सादिया अब अपने आप को बेहतर महसूस कर रही थी। वो कमरे की सफाई करती चली गई। अचानक सादिया को गली से आहट की आवाज़ आई। वो जल्दी से खिड़की की तरफ बढ़ी। वहाँ गली में एक बार फिर खौफनाक रीछ नजर आ रहा था और वो अब अपने मालिक के बगैर गली में भाग रहा था। उसके गले की जंजीर भी गायब हो चुकी थी। रीछ घर के सामने गेट पर रुक गया। गेट खुला हुआ था और वो सामने वाले बाग में चला गया। सामने का दरवाज़ा खुला और एक 3 साला लड़का भी बाग में दाखिल हुआ। उसने बड़े रीछ को देखकर उसकी तरफ चल दिया। बड़ा कुत्ता, उसने कहा। मैं बड़े कुत्ते के साथ खेलना चाहता हूँ। वापस आओ मास्टर ताहिर, सादिया चिल्लाई। जब वो कमरे से बाहर बालकनी की तरफ भागी, वो फौरन वापस उसके पीछे गई। ये रीछ है, कुत्ता नहीं। छोटे ताहिर ने एक ना सुनी और वो रीछ की तरफ चलता रहा। सादिया जानती थी कि उसे लड़के पर चीखने के अलावा कुछ और भी करना है। वो भी एकदम जल्दी से कमरे में वापस आई और जितनी चीज़ें उसके बाजू में उठाई जा सकती थी उसने उठाई, उनको जमा किया और वो फिर जल्दी से बालकनी की तरफ बढ़ी। उसने उन कीमती चीज़ों को यके बाद दीगरे रीछ पर फेंक दिया। लड़के से दूर हो जाओ, वैशी वो चिल्लाई। उसने जो चीज़ें फेंकी थी उनमें से कुछ रीछ से टकरा गई और कुछ रीछ के सामने ज़मीन पर गिर गई। इससे पहले कि वो रीछ को कोई नुकसान पहुँचा सके, वो हमले से हैरान होकर पीछे हट गया। छोटे मालिक की देखभाल करने वाला नौकर ये सारा मंजर वहशत से देख रहा था। जब रीछ पीछे हट गया तो वो जल्दी से घर से बाहर भागी और लड़के को महफूज मुकाम पर ले गई। उस वक्त रीछ का मालिक भी आ चुका था। उसने रीछ को रस्सी से बांधा और उसे दूर ले गया। सादिया ने ज़मीन पर पड़ी चीज़ों के टूटे हुए टुकड़ों को देखा। उसका दिल डूबने लगा। उस शाम नौकरानी ने सादिया से कहा कि आपने मास्टर ताहिर को बचाया है। साहब बहुत खुश हैं, अब वो आपसे मिलना चाहते हैं। सादिया घर की मुलाजमा के पीछे स्टडी में चली गई। उन्होंने मिस्टर साद को वहाँ पाया। वो वहाँ ये गिन रहे थे कि उसने कितनी चीज़ें तोड़ी हैं। जब उन्होंने सादिया को देखा तो बोले कि मैंने सबसे कीमती गुलदान पूरी दुनिया से जमा किए थे वो आपने तोड़ डाले हैं, लेकिन आपने सही काम किया। मेरा बेटा मेरे लिए इन चीज़ों से ज़्यादा कीमती है, इसलिए मैं अपने बेटे की जान बचाने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको ये सोने का सिक्का मिले, इसके बदले में मिले। सादिया ने सोचा वो ख्वाब में है, उसे हमेशा कुछ चीज़ें को तोड़ने की सज़ा मिलती है। उसने नहीं सोचा था कि इसे एक दिन ऐसा करने का सिला मिलेगा। आई होप आपको आज का वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।